First, write down the definition of random variable. Let S be the sample space. Write down, please. Let S be the sample space associated with a given random experiment let S be the sample space associated with a random experiment, given random experiment, then a real valued function capital X, then a real valued function capital X which assign to each event W belongs to sample space, real valued function capital X which assign to each W belongs to S to a unique real number capital X, to a unique real number capital X is called random variable, is called random variable. So what it says that S is the sample space, W is its events, जो भी आपकी इसमें event associated है, they are taken as W. Then each W or each event is associated or assign a real number. हर एक W को हमने एक रियल नंबर से या रियल फंक्शन से असाइन किया, दैट नंबर इज कैपिटल X, which is called random variable. Simple example ले रहा हूं, then it will be more clear. Let us consider the toss of 3 coins. अगर आप 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपका पहले सैंपल स्पेस लिखो. When you toss 3 coins, sample space, when you write, it will be head, head, head. Then it comes out to be tail, tail, tail. Then comes HHT, HTH, THH. फिर आ रहा है आपका tail, tail, head, tail, head, tail, head, tail, tail, और last आ रहा है tail, tail, tail. This is our sample space. These are W. ये सब W है. W is the events associated with a random experiment. ये सारी events हैं. 1, 2, 3. There are 8 events we have. So first thing what I told you, let S be the sample space associated with a given random experiment. What that random experiment we have? Tossing a coin 3 times. Then a real valued function capital X. Then a real valued function capital X which assign to each W, हर इसको एक वैल्यू दे रहा है. Assign each W belongs to S to a unique real number. Means ये HHH इस इवेंट को एक वैल्यू देगा, टेल 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 को एक वैल्यू देगा, HHT को भी एक वैल्यू देगा. Everywhere this X will be going to give you a value. So S is the sample space. These are the elementary events, या हम कह रहे हैं इनको events हैं associated with a random experiment. और here a X is going to assign a real value to each W. X is a real value function है. X is a real valued function which will be assigning each W a real number. And that number is called as a random variable. अब वो real value क्या होगी वो देखो. हमने ये लिखा है an XW if I take, ये हमें डिफाइन किया गया है. दिस इज नंबर ऑफ हेड्स. ये हमारा रैंडम वेरिएबल है. रैंडम वेरिएबल दे आर सेइंग X
and xw will be go what that number is, the number of heads. अब यहां पर अगर आप इस w को देख रहे हैं या इस इवेंट को देख रहे हैं, इसमें कितने हेड्स हैं? 3. तो इससे रैंडम वेरिएबल इज 3. इसकी रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या होगी? 0, कोई हेड नहीं है. इसकी रैंडम वेरिएबल क्या होगी? 2. इसकी रैंडम वेरिएबल क्या होगी? 2. इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1 1 और ये 0 है हमारे पास. सो ईच इवेंट which is the part of sample space is associated with a real number or assign a real number. Who will assign a real number? X. ये रैंडम वेरिएबल आपके हर इस वैल्यू को एक नंबर असाइन कर रहा है. दैट नंबर इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल बी गिविंग द नंबर्स टू इट. अगर मैं कहता x नंबर ऑफ टेल्स होता तो यहां 0 हो जाता, यहां 3 हो जाता, यहां 1 हो जाता. So this way the random variable is going to decide and we will be having each event as some value of x. So random variable is a function which assign a real number to each event which is here in the sample space. So this is called random variable. And they will be asking, and this is a discrete random variable. हम जो बात कर रहे हैं, we are just thinking about discrete random variable. Continuous random variable अपने syllabus में नहीं है. Discrete random variable, why I am saying? Because either the value of this will be 3 या 2 या 1 या 0. 0 के बाद सीधा 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, बीच के नंबर नहीं है. 2.1 2.2 these are the values random variable not taking. तो इसलिए हमने इसको discrete random variable बोला है. कंटिन्यूअस में क्या होगा? एवरी वैल्यू विल बी, एवरी रियल वैल्यू विल बी देयर. बट यहां पे क्या है? डिस्क्रीट है. रियल वैल्यू 0 के बाद 1 आएगी, 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी. सो रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट, ब्रेक हो चुका है. तो दैट्स व्हाई वी विल से इट विल बी अ रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वी आर जस्ट गोइंग टू हैव. नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. What is probability distribution? That also you should write down. If definition write down, then I'll explain. If a random variable capital X, if a random variable capital X takes the value as x1, x2, x3 till xn, with their respective probabilities P1, P2, P3, so on till Pn, then capital X, which will take value x1, x2, x3 till xn, and here we will have Px. What that will be? P1, P2, P3 till Pn. This tabular form is called probability distribution. X is our random variable. Let it takes value x1, x2, x3 till xn. And P is their respective probability. P क्या है? जब random variable की value आप x1 दे रहे हैं तो उस time probability क्या है? That is P1. x2 when you have, the probability of that will be P2. सबकी अगर हम probability calculate करें and then we will create a tabular form, it is called probability distribution. ये हमारा probability distribution है. So whenever they say probability distribution, you should write this tabular form. ये आपको ध्यान रखना है. एक और चीज यहां ध्यान रखनी है इस टेबल में, sum of all these probabilities come out to be always 1. Summation I is equal to 1 to n, Pi always come out to be 1. इन सब probabilities का sum हमेशा 1 आएगा. ये आपको ध्यान रखना है. That you should keep in mind.
इसी में मीन और वेरिएंस भी आता था, वो मीन और वेरिएंस हमारे सिलेबस से हटा दिया, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं। बाकी ये आपका सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको ये टेबुलर फॉर्म डिसाइड करनी है, x1 x2 x3 डिसाइड करने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करनी है, देन व्हाटएवर दिस टेबल विल बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन राइट डाउन प्लीज, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, can be the probability distribution x0 1 2, probability 0.4 0.4 0.2। Can it be a probability distribution, ये पूछा गया आपसे, क्या ये probability distribution है या नहीं है? Yes, please. Can it be a probability distribution or not? Probability distribution में मैंने आपसे कहा इन probabilities का सम हमेशा 1 आना चाहिए। क्या यहां पर समेशन ऑफ PI अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इट 1? यस, अगर है तो ये probability distribution काउंट होगा। अगर बाय द वे यहां ये 0.1 हो जाता, then what I should say, sum come out to be 0.9। 0.9 अगर आपके पास आ गया, that means it is not a probability distribution। अब आप क्या कहते हैं कि summation of PI आपका 0.9 आ रहा है, which should be 1, that means we will say it is not a probability distribution। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी probability distribution है या नहीं है चेक करवा रहा है तो सीधी जो probabilities आ रही है उनका sum निकाल लो, that come out to be 1, और जैसे ही वो 1 आ गया we will say yes it is a probability distribution, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, और we'll say it is not a probability distribution case, we should keep it। Right, one more question please। The random variable x, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये आना चाहिए। The random variable x has a probability distribution px, has a probability distribution px denoted as k if x is 0, twice k if x is 1, thrice k if x is 2, 0 otherwise। This is our probability distribution। My question is find what is k। 1/6। Find what is k। हाँ, क्या रहा है? 1/6। yes। How to do it? देखो भाई, ये probability distribution दिया है, इसका मतलब ये टेबल की इंफॉर्मेशन है पूरी। तो टेबल की इंफॉर्मेशन अगर है तो यहां तो हम x लिखते हैं, here we will write the probabilities px। x की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 0 दी गई है, 1 दी गई है, 2 दी गई है, अदरवाइज मींस आगे की वैल्यू में सब प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 0 1 एंड 2। जब p x 0 है तो p probability at 0 is k given in the question, probability at 1 is coming 2k, probability at 2 is coming 3k। आगे अगर आप लिखेंगे भी तो भी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिखो नहीं तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज अदरवाइज इट इज कमिंग 0। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ k। सो वी हैव ऑलरेडी डन समेशन ऑफ pi इज ऑलवेज 1। सो k plus 2k plus 3k कितना हुआ? 3 2 5 and 1 6, 6 of k is coming 1, so k is coming 1/6। ये आपने निकाल लिया। Then they are asking what is px less than 2, ये बताओ। Find what is probability for x less than 2।
तो देखो k की वैल्यू 1/6 आ गई है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी पूरी करें 1/6, ये आ गया आपका 2/6 और ये आ गया 3/6। When we have px less than 2 पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी केवल ये दो हैं, so I should write this as 1/6 plus 2/6. Your answer is 3/6. If they say find out px less than or equal to 2, अब बोलो भाई, yes please, 1. 1, क्योंकि अब की बार 2 भी इंक्लूड हो गया तो ये 1 हो जाएगा। If they say px greater than or equal to 2, अब बोलो, Half. yes, it will be only 3/6, half, greater than or equal to 2, 2 and above, तो केवल 2 ही आएगा आपका, तो that is 1/2. Next question please. A random variable x has the following probability distribution: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And here we have the probability px. It is k, it is twice of k, it is twice of k, it is thrice of k, k square, 2k square and 3k, k square, 2k square, 1 2 3, एक मिनट, 0 पे 0 दे रखा है, ये उल्टा लिख दिया भाई, 0 पे 0 है, फिर k, फिर ट्वाइस ऑफ k, फिर ट्वाइस ऑफ k, फिर थ्राइस ऑफ k, फिर k स्क्वायर, 2k square and then 7k square plus k. My question is, first one, what is k? Find out. First find out k, then px less than 6 निकालो, फिर px greater than or equal to 6 बताना है, and then फिर x is between 0 to 5 बताना है. Please find the answers. Yes, please. First find out what is k. बोलो भाई, what is value of k? Summation of pi is 1, तो ये हो गया k plus 2k plus 2k plus 3k, तो 3 2 5 6 7 8, 8 and 1 9k, 2 2 4 3 7 1 8 1 9, और यहां हुआ 7 2 9 and 1 10. Okay, this come out to be clearly 1. Can you solve it now? 10k square plus of 9k minus 1 is 0. When you do the factors of it, it will be 10k square plus of 10k minus of k minus 1 coming 0. Then I'll take 10k common, it will be k plus 1 minus 1 common, k plus 1 coming 0. So it will come 10k minus 1 and k plus 1 coming 0.
So what that indicate? K comes out to be 1/10 और K comes out to be -1. -1 रिजेक्शन में जाएगा क्योंकि K की वैल्यू अगर माइनस रखी तो प्रोबेबिलिटी माइनस आएगी, प्रोबेबिलिटी माइनस कभी नहीं आती, इट ऑलवेज कम बिटवीन 0 and 1. तो K हमारा -1 रिजेक्ट हो जाएगा, K comes out to be 1/10. Is this clear? और जैसे ही K 1/10 आया, हमारी प्रोबेबिलिटीज हम लिख सकते हैं 0, 1/10, 2/10, 2/10, 3/10. This is 1/100, 2/100. ये वो आपका 7/100 प्लस 1/10. कितना हुआ लास्ट में? यहां 100 लिया हमने, तो ये 17/100. Now they are asking Px less than 6. X less than 6, 6 से कम मीन्स यहां तक का रिजल्ट चाहिए आपको. तो दैट कम आउट टू बी 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 1/100. ये आप निकाल सकते हैं. दिस विल बी योर आंसर. हाँ जी, कितना आ रहा है जरा सॉल्व करके बताओ. 81/100. 81/100. Yes. Second one, x greater than or equal to 6. Greater than or equal to 6 means 6 and above. तो ये दो ही आएंगे. 2/100 plus 17/100, that come out to be 19/100. Then comes between 0 and 5. 0 and 5 के बीच में कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4. Because 0 is not included, 5 is not included. तो कितना हुआ? 1/10, 2/10, 2/10 and 3/10. 10 is the LCM. 3, 2, 5, 2, 7 and 1, 8. 8/10 is this result. सर इसके तो मतलब आसानी क्वेश्चन आएंगे ना, इसके तो मतलब क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते. सर फिर अपन एलपी स्टार्ट करें क्या आज? नहीं, अभी इसमें वर्ड प्रॉब्लम बाकी है. ये तो मैंने सिंपल अभी 1 मार्क में क्वेश्चन फंसेगा तो यहां इस तरह का आएगा. अभी रुक जाओ, आज इसको खत्म ही कर रहा हूं, कल उसको भी खत्म कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, आप डरो मत. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. Find the probability distribution of x. The number of heads. X, the number of heads in 2 tosses of coin. करो. Find the probability distribution of x. X क्या है आपका? The number of heads in 2 tosses of coin. 2 tosses of coin का सैंपल स्पेस क्या बनता है भाई? हेड हेड बनता है, हेड टेल बनता है, टेल हेड बनता है, टेल टेल बनता है. Now they are saying you write down the probability distribution. And what is x? X stands for number of heads. Number of heads, तो x क्या हो सकता है भाई? x अब आपको डिसाइड करना है. What is your x? Number of heads. 0, 1. क्या होंगे? एक भी हेड ना हो, एक हेड हो या 2 हेड. So x will take value as 0, 1 and 2. Then they are asking what is their probabilities. Probability अगर निकालनी है तो क्या होगा? 0 हेड. 0 हेड का मतलब ये वाला केस. इसकी probability क्या होगी भाई? 1 out of 4, 1/4. 1 head. 1 head की probability बोलो. हाफ. That is 2/4. हाफ. एक केस ये और एक केस ये दोनों मिलके आपको x1 दे रहे हैं.
x1 का मतलब एक हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड होंगी। तो ये और ये दो केसेस आउट ऑफ 4। देन टू हेड्स में क्या आ जाएगा 1/4। सम देख लो भाई, इसका 1 आना चाहिए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये आपको टेबल बना के देनी पड़ेगी। 3 cards, write down next question please. 3 cards are drawn from a pack of 52 cards. 3 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability distribution. Find the probability distribution of number of aces. Find the probability distribution of number of aces. करिए। What should be X? Total 0 1 2 3 0 1 2 3 टोटल कार्ड्स 52 हैं, आप ड्रॉ कर रहे हैं 3 एंड x इज द नंबर ऑफ एसेस। तो हो सकता है 3 में से एक भी एस ना आए, मे बी 1 ace, मे बी 2 ace, मे बी 3 ace. Then we want their probability. Please write down the probability for 0 ace. कौन बताएगा? 48c3 upon 52c3. Yes, total तो 52c3 हो जाएगा because 3 cards are drawn और 4 एस होते हैं, एक भी एस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ 42 these cards are there. So 48c3 by 52c3. Then 1 ace, एक एस का चांस क्या बनेगा भाई 4c1 into 48c2 by 52c3. 4c1 into 48c2 by 52c3. फिर 2 ace, out of 4 we are having 2, and then 48c1 divided by 52c3, and last 4c3 by 52c3. ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 3 कार्ड्स का। तो ये सब आपको डिसाइड करने हैं, उसके हिसाब से काम करना है। तो x आपका डिसाइड होना चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटीज निकलनी चाहिए, और ये पूरा सॉल्व करके आएंगे आप, वो आपको ध्यान रखना है। वन मोर क्वेश्चन राइट डाउन प्लीज। A bag contains 4 white and 6 red balls. A bag contains 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn at random. एक साथ आपने 4 बॉल ड्रॉ किए हैं from the bag. Find the probability distribution of number of white balls. Find the probability distribution of number of white balls. Number of white balls की probability आपको बतानी है। बोलो भाई। Four balls are drawn from the bag. Find the probability distribution of number of white balls. White balls की probability आपको बतानी है। What should be x? कौन बताएगा?
0 1 2 3 4 नहीं आएगा? Why not 4? 4 बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाइट बॉल इज योर रैंडम वेरिएबल, सो रैंडम वेरिएबल 4 तक जा सकता है क्योंकि 4 व्हाइट बॉल आपके पास हैं। Then we have the probability Px. बोलो भाई, पहला आंसर बोलो। नो व्हाइट बॉल, 6c4 by 10c4, यही होगा? Is it okay? Then one white हो गया 4c1 into 6c3 by 10c4. Then we go for 2 white, 4c2 into 6c2 by 10c4. That comes out to be 3 white. So it will be 4c3 into 6c1 by 10c4. And last आएगा आपका 4c4 by 10c4. These are the properties. Next question, please. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards successively with replacement. Successively with replacement. एक निकाला, चेक किया, वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला, वापस रख दिया। From a pack of 52 cards, find the probability distribution of number of kings. Please do it. Probability distribution of number of kings. Please find out. Yes, बोले भाई। What is X? 0 1 2. 0 1 and 2. Find the probability, please. No king. बोलो भाई। 48 by 52 into 40. 40? 48 by 52 into 48 by 52. Yes, 48 by 52. पहले वाले में 48 by 52 वापस रिप्लेस किया तो 48 by 52। ये ध्यान रखना है, डोंट से 48c2 by 52c2। वो तब यूज होगा जब रेंडमली 2 आर ड्रॉन। फिर कह रहा है एक किंग के चांसेस बने 4 by 52 into 48 by 52 प्लस हो जाएगा 48 by 52 into 4 by 52। पहला किंग दूसरा आधार कार्ड या दूसरा किंग पहला आधार कार्ड, और फिर हम बात करेंगे 2 किंग, तो दैट इज 4 by 52 into 4 by 52। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, हाँ जी सर 0 और 2 में मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया? इसमें तो दोनों आपके किंग नहीं है ना, तो कुछ भी हो सकता है। 48 यहां भी आ गए, यहां भी 48 आ गए, वही 48 यहां रहे, 48 यहां रहे, तो इसको रिप्लेस क्यों करूंगा? जो कार्ड यहां आ गया वो यहां भी आ सकता है, आ गया ना 48 48, वही 48 केसेस यहां है, 48 केसेस यहां है। बाय द वे यहां क्वीन आ गई 8 की, तो यहां भी आ सकती है, 48 लिखे हैं आपने। उसको इंटरचेंज करने का क्या मतलब, दोनों क्वीन का इंटरचेंजिंग का क्या मतलब हुआ?
सेम क्वीन आ रही है तो दोनों तरफ इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, क्योंकि आप उस वापस रख रहे हो। ये सर समझ आ गया, थैंक यू ठीक सर। है, चलिए राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड until a head comes or tail appear 4 times in succession. A coin is tossed until a head appear or the tail appear 4 times in succession. Find the probability distribution of number of tosses. Find the probability distribution of number of tosses. सर अगर ये 4 टाइम्स नहीं होता फिर तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता ना सर। बिल्कुल, तब तो इंफिनिटी तक जाता। Question says coin is tossed until a head appears or a tail appear 4 times in succession. Find the probability distribution of number of tosses. बोलो भाई कैसे करें? सर 0 से 5 तक। 0 से 5 तक नहीं भाई, पहला काम सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस में पहला क्या आएगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, आप वहीं खत्म करेंगे। By the way, head is not there, then we should have head, tail, sorry. Then second time head comes, we stop here. Maybe it is not there, so then tail, tail and head third attempt पे हम stop करें। Maybe tail, tail, tail and head फिर फोर्थ पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हेड आ गया, या फिर टेल 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 और टेल, 4 टेल सक्सेशन में आएंगे तो भी हमें स्टॉप कर जाना है। यही हुआ, या तो हमारा फोर्थ पे हेड आ जाएगा या फोर्थ पे टेल आएगा, दोनों पे हमको स्टॉप करना है, बिकॉज ही इज सेइंग जहां आपके कंसेक्यूटिव 4 आ गए टेल्स वहां आप स्टॉप कर जाओ। तो ये आ गया। सो व्हाट शुड बी एक्स नाउ, कौन बताएगा? 1 से 4। 1 2 3 4, 1 टॉस या 2 टॉस हुए या 3 टॉस हुए या 4 टॉस हुए। फर्स्ट एक टॉस में प्रोबेबिलिटी बोलो 1/2, 2 टॉस पे प्रोबेबिलिटी बोलो 1/2, 1/2, इट्स 1/4, 3 टॉस में 1/8, 4 टॉस में 1 2 3 4, तो 1/16 और ये भी 1/16, क्योंकि ये दोनों केसेस 4 टॉस के हैं, तो it come out to be 2/16, so 1/8, 1/8, 1/4, 1/2. This is the total probability. Is there any doubt? सर इसका सम आ जाएगा क्या 1 के बराबर? करो, देख के करके देख लो ना, मैं मना कब कर रहा हूं, करो। ये 1/8 1/8 तो ये 1/4 हो गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस हाफ, निकाल लो कितना आता है। हाँ सर 1 आ गया। ठीक है ना, 1 तो आएगा ही, नहीं आएगा तो गलती कर रहे हो, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is loaded such a way a die is loaded such a way that an even number is twice likely to occur as an odd number. Even number is twice likely to occur as an odd number. If the die is tossed twice, then find the probability distribution.
of random variable x representing the perfect square in two tosses. Representing perfect square in two tosses. एक डाई आपने टॉस की है, उसमें इवन आने के चांसेस ऑड के डबल हैं. इफ द डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, आप डाई को दो बार टॉस कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the random variable x representing the perfect square in two tosses. Perfect square in two tosses. सबसे पहली बात, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, probability of 3, probability of 4, probability of 5 and probability of 6 we have already won. ये तो हमारे पास होता है. Now he says probability of even number is twice the probability of odd. यही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड को अगर मैं स्मॉल p मान लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर विल बी ट्वाइस ऑफ p. ये ठीक है. इसका मतलब p1 तो सीधा सीधा p होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड को हमने क्या माना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड वी हैव टेकन एज p1 या p ले रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड p है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 2p है. तो यहां से अब आप एक चीज निकाल सकते हैं. p1 कितना हुआ? p, ये हुआ ट्वाइस p, फिर p, फिर ट्वाइस p, फिर p और फिर ट्वाइस p comes out to be 1. 2, 4, 6, 7, 8, 9. So 4p is coming, sorry, 9p is coming 1. So p is coming 1 by 9. इसका मतलब probability of 1, probability of 3, probability of 5 all are 1 by 9. Okay? Same way probability of 2, probability of 4, probability of 6 all are what? Double of it, 2 by 9. ये आपके पास एक कंडीशन हमने निकाली जो हमारी पहली लाइन दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवन इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड. वो हमने यूज किया. यहां किसी को समझ नहीं आया तो बोलो भाई. इज इट ओके? बोलो भाई. यस. ठीक है. चलिए अब आगे क्या कह रहा है? नाउ वी आर टॉसिंग द कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग दिस डाई ट्वाइस एंड एक्स इज perfect square in two tosses. Number of perfect square in two tosses. Perfect square कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो 1 perfect square होता है और एक 4. 1 to 6 में केवल दो ही perfect square आ रहे हैं, या तो 1 आएगा या 4 आएगा. और वो कह रहा है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. आप दो बार टॉस कर रहे हैं, हो सकता है एक बार भी परफेक्ट स्क्वायर ना आए, हो सकता है एक बार परफेक्ट स्क्वायर आए, हो सकता है दो बार परफेक्ट स्क्वायर आए. Now I want the probability of no perfect square. Perfect square एक बार भी नहीं आ रहा है. Perfect square आने के चांसेस बताओ भाई पहले तो. No perfect square. परफेक्ट स्क्वायर के चांसेस क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब या तो P1 आए या P4 आए. P1 की प्रोबेबिलिटी है 1 by 9 और P की है 2 by 9. So it is 3 by 9, that is 1/3. ये तो परफेक्ट स्क्वायर के आने के चांस है. और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए तो that will be 2 by 3. इसको 1 में से माइनस कर दो. First time no perfect square. No perfect square means 2 by 3 into 2 by 3.
सेकंड में हाँ बोलो। ऑर्डर कंसीडर नहीं किया, जैसे पहले एक बार 1 आया फिर 4 आया, और एक और ऑर्डर हो सकता है पहले 4 आया फिर 1 आया। दोनों केस ले लिए ना, 2/3 2/3, तो इसमें 1 और 4 कुछ भी आ सकता है, यहां भी 1 और 4 कुछ भी आ सकता है। अच्छा सर ठीक। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए हम उल्टा नहीं करते इसमें। और नंबर हमारा 1-4 यहां आएगा या 1-4 यहां आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में इवन आएगा, तभी तो 2/3 लिखा है, यहां भी 2/3 लिखा है। फिर कह रहा है 1 इवन 1 ऑड। अब 1 इवन 1 ऑड मींस 1/3 इंटू 2/3, यहां उल्टा होगा 2/3 इंटू 1/3। फिर दोनों इवन नंबर क्या आएंगे, दोनों परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 1/3 इंटू 1। ये आपका आंसर है। 32.1 एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। 32.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, उसके आगे आपके सिलेबस में नहीं है। मीन और वेरिएंस हटा दिया है, केवल आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था जो मैंने आज आपको करा दिया है। तो इसमें यही चीजें हैं जिसमें या तो आपसे टेबल बनवा लेगा, या मैंने शुरू में क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करके कोई भी प्रोबेबिलिटी वो पूछ सकता है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी वी हैव कंप्लीटेड। सर इस साल के अब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में आरडी शर्मा की जरूरत है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से काम हो जाएगा? अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले रहे हो तो भी काम चल जाएगा, आरडी ले रहे हो अकेली तो भी चल जाएगा, क्योंकि आरडी सबको कंप्लीट करता है। आरडी ने एग्जाम्पलर भी डाला हुआ है, आरडी ने एनसीईआरटी भी डाला हुआ है, और ने प्री बोर्ड भी डाला हुआ है, सारा डाला हुआ है। आप कोई बुक उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे पेपर करवाऊंगा, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के ऊपर है आप कितने पेपर्स करेंगे। जितने पेपर्स करेंगे आप ये मान लो एक पेपर में 36 क्वेश्चंस आ रहे हैं करीब करीब, तो एक पेपर अगर आपने ठीक से किया तो 36 क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं। और आपके पास अभी 3 महीने हैं, 3 नहीं 4 ही महीने हैं आपके पास, जिसमें आप बहुत सारे पेपर कर सकते हो। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट में एक हॉकी मैच का क्वेश्चन दिया था, वो सर करवा देना एक बार आप जब भी। हॉकी वाला क्वेश्चन कराना है, क्या था ये क्वेश्चन, सर कुछ याद है, क्वेश्चन कुछ याद है? ये सर मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ हाँ आपको। इन अ बिल्कुल बता हॉकी दो, मैच, हाँ मैं करा देता हूँ, हाँ बोलो। in a hockey match, team A and B score same number of goals up to the end of the game. Yes. So to decide the winner, the referee asked both the captains to throw a die alternatively and decided that the team whose captain gets 6 first will be declared the winner. If the captain A start the toss, probabilities of winning the match. Yes, ठीक है। तो देखो भाई क्या कह रहा है ये कि आपको दो प्लेयर हैं, दो टीम है, दोनों को अब हम टॉस से विन कर रहे हैं। टॉस से विन कर रहे हैं इसका मतलब हुएवर गेट 6, डाई को टॉस करा रहे हैं, जिसका पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा। और ए जो आपके पास टीम है उसका कैप्टन स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आपको ए को विन कराना है तो ए कब विन हो सकता है वो जरा ध्यान से देखो। ए को अगर विन करना है टी वाला कि पहले हाँ एच आ गया, टी अपन कर रहे अभी, जैसे अपन ने वो किया था सक्सेसिवली वाला एच और टी का, तो एच आ गया। ये सीरीज इंफिनिटी तक जाएगी। देखो पहले ने टॉस किया एंड लेट द ए विन, ए विन मींस ए का 6 आ गया, आप यहीं खत्म कर देंगे, टीम ए को विनर बना देते हैं। बाय द वे ए को 6 नहीं मिला, इसका मतलब ए लूजेस। ए मींस व्हाट, ए गेट 6, ए बार मींस ए डज नॉट गेट 6। अगर ए को 6 नहीं मिल रहा तो आप बी पे देंगे, बी को देंगे, हमने मान लिया बी को भी 6 नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, ए को विन करना है मुझे, तो आप फिर ए को चांस देंगे, तो फिर ए विन करे, खत्म हो गया। यहां पे हो सकता है ए थर्ड में विन करे, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी ना बने, ए लूज कर जाए, बी भी लूज कर जाए, फिर ए लूज कर जाए, फिर बी लूज करे, फिर ए विन करे। This goes till infinity.
ये आपका ए के विन के चांसेस है। ए विन कब कर सकता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में विन कर सकता है, या थर्ड में कर सकता है, या फिफ्थ में कर सकता है, या सेवेंथ में कर सकता है। अब इसको जीतने के लिए ए को 6 लाना है। 6 के चांसेस होते हैं 1/6। यहां क्या हुआ? 5/6, क्योंकि ए के भी 6 नहीं आया, बी के भी 6 नहीं आया, फिर ए के 6 आया। यहां ए का 6 नहीं है, बी का 6 नहीं है, ए का 6 नहीं है, बी का 6 नहीं है, तो 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 1/6. This goes to infinity. It's a GP. GP की n टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है? a/1 - r, इफ यू रिमेंबर। a आपका क्या बना? 1/6, और r क्या बनेगा? 1 - 5/6 का होल स्क्वायर। Then we'll write 1/6 by, ये हो गया आपका 36 - 25/36। ये 6 से 6 कटेगा, 6/11 आ गया। ए के विन के चांसेस 6/11 हो गए। यस, इज इट क्लियर? फलक? यस सर। सर ये लेकिन ये फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया है, इन्फिनिटी वाला? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लास्ट ईयर जीपी में किया है, a/1 - r। a is the first term, r is the common ratio. सर मतलब जो शुरू करता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं? बिल्कुल, शुरू करेगा उसको एक चांस का बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बी को विन कराना चाह रहे हैं तो क्या होगा? देखो, अगर हम बी को विन करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? पहले ए को लूज करना पड़ेगा, फिर बी विन करेगा। वहां 1/3 5 था, यहां 2 4 6 आएगा। फिर ए लूज करे, बी लूज करे, ए लूज करे, फिर बी विन कर जाए। इसी तरह से ए लूज कर रहा है, बी लूज कर रहा है, ए लूज कर रहा है, बी लूज कर रहा है, फिर ए लूज कर रहा है, फिर बी विन कर रहा है। दिस वे टिल इन्फिनिटी। तो ये बनेगा आपका 5/6 into 1/6, 1 2 3, 5/6 का होल क्यूब into 1/6, फिर आएगा 1 2 3 4 5, 5/6 power 5 into 1/6 till infinity. Now what is the formula? a/1 - r. a ये रहा आपका, by 1 minus क्या आएगा? 5/6 का होल स्क्वायर। So I write down 5/36 by 36 minus 25/36. 36 से 36 कट गया, 5/11। बी के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, बट ये जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें ये उल्टा हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा जब आप मैं ये कहूं कि ए कब जीतेगा। मान लिया हमने 2 कॉइन टॉस किए और मैं कह रहा हूं ए का सम अगर 6 आता है तो वो जीतेगा, और बी का अगर 7 आता है तो वो जीतेगा। तो अब वहां बी को 7 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 7 के केसेस ज्यादा बनते हैं, 6 के कम मिलते हैं। तो वहां आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको उल्टा आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें तो क्या था, दोनों को 6 में लाना था, बट अगर 6 और 7 अलग अलग कर दें तो उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। तो उसकी वजह से यहां आपके पास रिजल्ट में फर्क आ जाएगा, और ये फर्क आते ही आपके आंसर डिफर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस LPP। ओके, सो थैंक यू, एंजॉय योर हॉलीडे।